Hello and a very warm welcome to LWS, that is Learn with Seerath. I'm Seerath Toor, and today, like I said in my previous video, I'm going to take up a very important, relevant and a current topic for discussion. That is ये जो RBI का recent announcement हुआ है for the withdrawal of 2000 rupees currency notes from the market, उसकी जो circulation पे वो stoppage लगा दी गई है, इसका मतलब क्या है? You know why I'm taking this? This might not be directly related to your UPSC examination, but yes, parts of it are relevant. Parts of it is good for you to develop your perspective, and which can be used in multiple ways during your examination, right? So let us just take up first of all RBI का announcement क्या था? RBI ने क्या announcement किया? RBI आपको पता है it's a Reserve Bank of India, that is the Central Bank of India. RBI ने a few days back announce किया है that it will withdraw all the 2000 rupees currency notes, right, from the market. In fact, it has directed the banks that to immediately stop issuance of ये 2000 rupees के notes का, and at the same time it has told the public कि जितने भी 2000 rupees के currency notes आपके पास हैं, either you deposit them or you get them exchanged. Exchanged का मतलब है that suppose you have like 4000 rupees या two in terms of two notes of 2000 rupees denomination, तो आप बैंक से जाके उनको exchange कर लो in notes of smaller denominations like 500 या 100, जैसे भी बैंक suitably says, तो आप उसको exchange कर लो. So this process is going to start from tomorrow, that is 23rd of May 2023. ठीक है, तो ये कल से शुरू होगा. तो that is why this topic is very relevant, and that is why this is very important for us to understand कि हो क्या रहा है and why this is happening, right? So deposits पे there has been no limitation, जैसे आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, बट उसमें वो सेम ही कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी जो यूजुअली हमारे डिपॉजिट्स पे रहती हैं. लाइक इफ यू आर डिपॉजिटिंग द सम ऑफ ग्रेटर दैन 50,000, so you'll have to furnish your ID cards. आपको कुछ ID का प्रूफ देना पड़ता है, you have to give your PAN card and all. But for exchange, no such condition has been kept. But yes, आप ये कहा गया है कि at one time you can exchange a sum of 20,000 rupees only in one day, right? And also this, like I said, it will begin from tomorrow. And ये 20,000 rupees जब आप exchange करते हो, अब आप कहोगे कई लोगों के पास वो ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है. For people who do not have a bank account, RBI has been generous and it says for this amount it doesn't need any it doesn't need any proofs, right? Anybody can go and get it exchanged. Likewise, even for people who are living in remote areas of the country, they will be provided, those banking correspondents will be there to help them out in the exchange process. Okay, so this is the announcement, but there is another very important part to this announcement, which says that the legal tender status of the notes, of the 2000 rupees currency notes, it stays as such. That means it has not been revoked or it has not been withdrawn. अब इसका मतलब क्या हुआ? And ये इस चीज़ के लिए, one thing I missed, इस चीज़ के लिए बैंक ने 30th of September का टाइम दिया है लोगों को. 30th of September effectively 4 months का विंडो है, which is pretty good, right? So that shows that there is no need to panic. One thing is sure that you don't need to panic. 4 months का window है आपके पास to get your money either deposited or exchanged. And till then, or even after 30th of September, nobody knows. The legal tender status of these notes stays. At least अभी तो है, right? Till this time, till no further notification or clarification, legal tender of 2000 rupees अभी भी legal tender है इंडिया में. तो RBI first of all ये क्यों कर रहा है? We should all know. Let's just go to the basics. थोड़ा सा basics लेते हैं. RBI, it's the Central Bank of India. So RBI under
RBI Act 1934. ठीक है, RBI under this act has a right to both print and issue currency notes in India. ठीक है, it has both the right to print and issue currency notes in India. So that means जितने भी currency notes print होते हैं हमारे कंट्री में या issue होते हैं, that are done by RBI. And yes, of course, the जो coins हैं, they are minted by government of India. And yes, before you point out, जो rupee 1 का note है, it is also minted by government of India because इसको हम नोट नहीं मानते हैं, इसे हम एज अ कॉइन कंसिडर करते हैं, राइट? सो दिस अगेन हैज बीन इट इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड अगर हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो लेट अस आल्सो डिस्कस दैट देयर आर 4 मिंट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 मिंट्स हैं, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में. जो कोलकाता वाला मिंट है वो लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है. ठीक है, आई थिंक 1757 में इस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, एंड इन केस ऑफ द RBI इसकी प्रिंटिंग भी 4 जगह होती है. 2 are owned by government of India and 2 are owned by BRBNMT, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड. ठीक है, तो ये कौन से है? नासिक और देवस, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके सालबोनी और मैसूर. ठीक है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है विच आई वांटेड टू गिव यू. तो बिकॉज RBI हैज अ राइट टू बोथ प्रिंट एंड इशू नोट्स, राइट, एज पर RBI Act 1934. ओके, सो इट हैज बीन इशूइंग these currency notes, and also as per section 24 of this act only, demonetization भी इसी का क्लॉज है. डीमोनेटाइजेशन सेक्शन 24 में ही लिखा गया है. और डीमोनेटाइजेशन क्या क्लॉज क्या कहता है? आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. डीमोनेटाइजेशन का जो क्लॉज है, दैट सेज दैट the central government of India, on recommendation of the Central Board of Reserve Bank of India, Central Board can direct the non-issue or discontinuance of issue of bank notes of such denomination values as it may specify in this behalf, right? So denominations जो भी हैं वो section 24 में mentioned है, उसी के सब clause 2 में demonetization mentioned है. ठीक है, so demonetization is a part of RBI Act. You should be very clear with this, right? So और जहाँ पे legal tender status है, this is also a part of section 26 of RBI Act. लीगल टेंडर स्टेटस भी सेक्शन 26 ऑफ RBI Act का ही पार्ट है. सो यू शुड नो दिस वेरी वेरी क्लियरली. ठीक है, तो क्या कहते हैं लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? अब लीगल टेंडर कोई भी ऐसी करेंसी है, अगर मैं आपको बताऊं जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है. अगर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएं, इट इज एनीथिंग विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट which can be used as a means of settlement of debt, any kind of debt or any kind of financial obligation. अब ये debt बहुत private भी हो सकती है, public भी हो सकती है, right? या आपकी कोई financial obligation है वो भी हो सकती है. Why it can be used to settle these things? Because it is notified by the government of India and it is backed by it. ठीक है, तो उसकी जो भी values है वो back करती है government of India. That is why they are legal tenders. अब आप ये कहोगे कि कौन सी डेट, हमने तो कोई क्रेडिट लिया ही नहीं, तो डेट कहाँ से आ गई? तो डेट कुछ भी हो सकती है. सपोज आप कुछ बाहर जाके शॉपिंग करते हो, तो पुराने ज़माने में ओल्डन डेज देयर वाज बार्टर सिस्टम. तो हम गुड्स वर्सेस गुड्स करते थे. मेरे पास कोई गुड है तो उसके एक्सचेंज में मैं आपसे कोई गुड खरीद लेती थी. लेकिन अब नाउ डेज वी हैव currencies. So in return for goods and services that I take from a person, I owe him some money. I am indebted to pay him an equal value of money. Money क्या हुआ? जो हमारे कंट्री का करेंसी है, करेंसी विच इज द लीगल टेंडर. एंड लीगल टेंडर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि लोग या अदरवाइज एंटी सोशल एलिमेंट्स किसी भी चीज़ को उठा के एज मनी सर्कुलेट ना करते.
ठीक है। सो मनी वही होगा जो नेशनल करेंसी होगी। सो नेशनल करेंसी इज ऑलवेज द लीगल टेंडर। सो इट इज बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर, सो तभी उसकी मान्यता है। अब 2016 में क्या हुआ था, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 2016 में क्या होता है। 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 रुपी करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था। डीमोनेटाइज का मतलब उनका लीगल टेंडर स्टेटस हटा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इनकी ट्रांजैक्शंस वर ऑफ नो यूज टू द इकोनॉमी, ठीक है, दे वर नॉट एप्लीकेबल इन द मार्केट एनी लॉन्गर। बट एंड दैट उसी ड्यूरेशन में ये 2000 रुपीज का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो लेकिन दैट इज अ सेपरेट इशू। सो जब ये डीमोनेटाइज हो गए थे, ठीक है, बिकॉज इनका लीगल स्टैंडर्ड स्टेटस हटा दिया गया था, दैट इज व्हाई इट वाज डीमोनेटाइजेशन। बट इन दिस केस, in this present scenario, this is not demonetization because legal tender status still stays, ठीक है। So just get this very clearly in your head that अभी 2000 रुपीज का legal tender status नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो अब अगर हम जानना चाहें कि तो क्या वजह रही होगी कि आरबीआई ने सडनली उठ के इसका लीगल टेंडर स्टेटस तो मेंटेन कर दिया, पर इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, राइट। तो you have to understand that this is a very regular exercise जो काफ़ी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स बहुत बार करते हैं, ठीक है। इवन इन इंडिया इन 1999 आरबीआई ने ही एक पॉलिसी निकाली थी, क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी या क्लीन करेंसी पॉलिसी। इसमें कहा गया था कि जो भी करेंसी नोट्स स्पॉइल्ड हैं, खराब हो गए हैं, या फिर जो फेक करेंसी इतनी मार्केट में चल रही है, या फिर जो करेंसी नोट्स की सिक्योरिटी फीचर्स अपडेटेड नहीं है बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, सो दे नीड टू बी रिकॉल्ड बैक फ्रॉम द सिस्टम and in return we will issue new notes, right? So people are made to deposit those kind of notes with the banks, right? So that is why ये exercises अक्सर होती रहती हैं, ठीक है। तो अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब ये किस्सा हुआ, जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, राइट, तो हम सबको पता है कि उस वक्त मेजर करेंसीज जो डिनोमिनेशंस थी वो 500 और 1000 की ही थी। ये बिग डिनोमिनेशन थी, इसके ऊपर कोई डिनोमिनेशन उस वक्त नहीं थी। सो दैट मीन्स जब ये करेंसी एकदम से जीरो हो गई या पीपल वर आस्क्ड टू डिपॉजिट इट इनटू द बैंक्स, तो जो मार्केट में मनी सप्लाई, देयर वाज अ क्रैश, देयर वाज अ बिग फॉल इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। तो उस वक्त आरबीआई ने 2000 रुपीज का नोट निकाला टू रीमोनेटाइज द सिस्टम, ठीक है, टू रीमोनेटाइज द सिस्टम, ताकि सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़े। और ना सिर्फ 2000 का नोट निकाला, इवन 500 का भी न्यू करेंसी नोट इशू किया गया था, राइट। तो देखा गया है कि 2017 तक इसकी मेजर इशुएंस हो गई थी। इनफैक्ट 2018 तक 88 to 90% ऑफ दीज नोट्स वर इशूड। सो 2018 to 2019 का जो पीरियड था उसमें बहुत सिग्निफिकेंटली फॉल हुआ था इन द इशुएंस ऑफ 2000 रुपीज नोट्स। ये पहला क्लॉज है। दूसरी बात ये है कि 2017 में जो 2000 रुपीज का नोट था, राइट, इसकी टोटल मनी सप्लाई में जितनी भी हमारे कंट्री में मनी सप्लाई थी, इट कॉन्स्टिट्यूटेड 50% of the total money supply in the country in 2017 after when the economy was remonetized. लेकिन in 2023 ये घटकर आ गई है 10.8%। ये डेटा आरबीआई का है, ठीक है, ये घटकर आ गई है 10.8%। अब ये 50 से 10.8% आ गई है। So over the years it clearly shows that RBI has deliberately reduced the issuance of these notes, और जो बाकी करेंसी डिनोमिनेशंस हैं उनकी सप्लाई बढ़ा दी गई है इन द इकोनॉमी, राइट।
So that is another reason why this exercise has been undertaken. और like I've already told कि ये नॉर्मल एक्सरसाइज है जो बैंक्स कैरी आउट करते हैं. एक और रीजन है सेक्शन 24. Let me just erase this. हाँ, सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट में जो डिनोमिनेशन करेंसीज की बताई गई है वो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो. लाइक वी हैव अ 10 रुपीज का नोट, देन वी हैव 20, देन वी हैव 50. 30 और 40 नहीं है, ना ही 60 है, ना ही 70 है. लाइकवाइज वी हैव 100, देन वी हैव 500, और अब 2016 में ये भी मतलब इस डिमोनेटाइजेशन के बाद 200 का भी आ गया, ऐसे ही 2000 का भी आ गया. बट दीज वर मिसिंग, these were completely missing. So because these were missing, so इसका जो मार्केट में एक्सचेंज हो रहा था या ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, they were becoming very tough. Because जो लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट डिनोमिनेशन थी इसको एक्सचेंज करने के लिए, that was 500. This and this was not there, right? So that was another major reason why RBI may have taken this step, right? तो अब ये स्टेप भी ले लिया, हमें रीजंस भी स्टडी कर लिए. तो अब इनका आउटकम क्या होगा? पहली आउटकम क्या हो सकती है? पहली आउटकम हो सकती है कि जो अभी बैंक ने बोला है कि आप डिपॉजिट कर सकते हो मनी आफ्टर टुमारो. तो जब डिपॉजिट कर सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो, डिपॉजिट और एक्सचेंज, तो जो तो लोग एक्सचेंज कर लेंगे दैट इज ओके, बट द पीपल हु डिपॉजिट दैट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई विद द बैंक्स, राइट? तो मनी सप्लाई जब बैंक्स के पास इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा. वन. सेकेंडली, अब क्या होता है कि जो लोगों के पास अनऑथराइज्ड मनी है, ब्लैक मनी है, राइट, काला धन है, तो अनडिक्लेयर्ड मनी है, उन लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. बिकॉज मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में लोग रहते हैं या जो ऐसे मनी रखते हैं, they always try to keep it in larger denominations, right? So 2000 का नोट जब सर्कुलेशन से हटा दिया गया, so that means they will have a big setback because they can't deposit that kind of money because they've not declared, and मतलब they can't even keep it any longer. ठीक है, क्योंकि अभी लीगल टेंडर है, बट सितंबर के बाद क्या होने वाला है nobody knows. So this is another way to check black money in the market. एंड थर्ड रीजन ये भी हो सकता है, विच इज नॉट अ वेरी गुड आउटकम, दैट इट कैन ट्रिगर पैनिक इन द मार्केट. मार्केट में पैनिक ट्रिगर हो सकती है डेफिनेटली, बिकॉज कल का टाइम दिया गया है. तो वी कैन से दैट 23rd of May के बाद पीपल माइट स्टार्ट रशिंग टू बैंक्स, टू एक्सचेंज देयर मनी, टू गेट देयर करेंसीज एक्सचेंज्ड. And although this should not happen, because today also the governor of RBI has said that there is no need for you to rush to the banks because the legal tender status stays. And secondly, 4 months का window है, but still this can be one of the adverse outcomes which we will see tomorrow. So these are the basic things that you should know about this announcement, and of course why things are being done. So ये टॉपिक डायरेक्टली माइट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम कि उस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, बट येस, डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, और आरबीआई ऐसी एक्सरसाइज क्यों करता है, दिस यू शुड डेफिनेटली नो, राइट? आई होप दिस वाज यूजफुल, एंड आई वुड लाइक टू हेयर योर कमेंट्स एंड सजेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड उसको भी वी विल ट्राई टू ब्रिंग यू अ वेरी करंट एंड अ relevant topic for your examination. Thank you so much for watching.